Hello everyone. So going to read the chapter Glimpses of India, chapter part 2, Kurg. I have already uploaded the part 1 of this chapter Glimpses of India. You can watch that, and you can watch, and you can, if you want to watch that, click on the link given below. Now, first of all, I want to, before starting the chapter, I want to tell you the culture and tradition of Kurg. What is, because it is very important to know about Kurg, because in this chapter it is already, it is told about the tradition of Kurg, their games, their their animals, and lots of things. So first of all, I want to tell you about the tradition, culture and tradition of Kurg. So these kind of dresses they wear, they dance like this, their tradition and how do they dance, and all these things you can see here in the pictures, and I hope it will help you to understand the chapter. And now games. So people go there, you can see this thing. जो लोग होते हैं दे आर लेड बैक मीन्स होता है जिनको बहुत आराम पसंद होता है, ठीक है, वो भी इस तरीके के गेम पसंद, जब वहाँ जाते हैं तो वो भी काफ़ी जो है एडवेंचरस हो जाते हैं, और वो रिवर राफ्टिंग, रैपलिंग, ठीक है, एंड कैनोइंग, ये सारी चीज़ें, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स दे प्ले. एंड जब आप वहाँ जाओगे यू विल सी बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, many types of squirrels, monkeys, right? So this is the thing I want to tell you. So these kind of things, rappelling, this is okay. And one more thing, these people are कड़ावूज, right? And जो ये पहने हुए हैं that is कुपिया. My motive is to show you this picture is that you must know the dress. This dress is called, so this dress is called, wait, let me tell you. So this dress is called kupiya. You will read in this chapter, it is kupiya, right? And these people are Kodavu. You will read in this chapter about these people. So Kadavus and Kupiya. So this thing you have to remember. And now these are monkeys. You will see there many monkeys, langoose, birds, butterflies, and people love to these games like as I told you earlier, mountain biking, climbing, rock climbing, and river rafting, all these things they want to play. So this is the thing I want to tell you. Now we'll start the chapter. I hope you understand, you will enjoy it. So now so the chapter is Kurg. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. सो मिडवे कहाँ पर, रास्ते में, बीच में, बिटवीन मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में क्या एक सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, क्या है, एक ऐसी जगह है. अच्छा, कोस्टल मीन्स जानते हो ना आप लोग, जो तटीय इलाका होता है, तटीय प्रदेश, ठीक है. सो कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, एक ऐसी जगह है जो लगती है बिल्कुल अ पीस ऑफ हेवन की तरह. सिट्स मतलब कि है वहाँ पर, सिट्स मतलब बैठना नहीं, सिट्स मतलब है. अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड, जो कि पक्का लाया गया होगा, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के राज्य से, गॉड के राज्य से. इट मीन्स दैट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है. सो एज यू हैव सीन द पिक्चर्स of Kurg, so it must be very beautiful. That's why it is said for the place Kurg that it is a piece of heaven. It looks like a kingdom of God, right? So this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men
ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। सो ये जो लैंड है ऑफ रोलिंग हिल्स, मतलब एक हिल के बाद दूसरे हिल की कहते हैं, तो पहाड़ियों की इस जगह को, ठीक है, जो है इज़ इनहेबिटेड बाय अ प्राउड, ये जगह है जो इनहेबिटेड है, किसे, वहाँ के, और प्राउड करती है, किस चीज़ का प्राउड करती है, वहाँ के जो मार्शल मैन हैं, एकदम जो बोलूँगी मैं स्ट्रॉन्ग, या एक तरीके से कह सकते हो वीर योद्धा, ठीक है, और यहाँ की ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिस पर ये जगह जो है प्राउड करती है। कुर्ग एंड कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कुर्ग या कोडागू, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी अभी, आई विल शो यू दैट इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर। सो कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज़ होम टू एवरग्रीन रेनफोर्समेंट, सॉरी, सो जो कर्नाटका है, जो कुर्ग है और कोडागू है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है ऑफ कर्नाटका का, इज़ होम टू, और ये घर है किसका, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, मतलब सदाबहार वनों का, स्पाइसेस का, और वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन भी होता है। और एवरग्रीन रेनफोर्समेंट, जो एवरग्रीन रेनफोर्समेंट है, सदाबहार जो वन है, कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, वो 30% इस डिस्ट्रिक्ट का कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पार्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, और ये जो है मानसून में, ये जो है मानसून के टाइम पर कवर करते हैं, क्या करते हैं, ये जो मानसून के टाइम पर क्या करते हैं, मैनी विजिटर्स को अवे, दूर रखने में हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग मानसून इट पार्स इनफ, ये काफ़ी जो है उड़ेलते, मतलब काफ़ी यहाँ पे बारिश हो जाती है जिससे विजिटर्स दूर रहते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर, ये सीज़न जो है इन्जॉयमेंट का जो सीज़न है, ये कब आता है, कमेंस मतलब रहता है, फ्रॉम सेप्टेम्बर से लेके कॉन्टीन्यूस टिल मार्च तक रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, वेदर बहुत परफेक्ट होता है, विथ सम शॉर्ट्स थ्रोन इन और गुड मेजर्स, ठीक है, और जो द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शॉर्ट, थोड़ी सी जो बारिश होती है, मतलब इस टाइम पर, मार्च के टाइम पर थोड़ी सी जो बारिश होती है वो जो है अच्छे मात्रा में हो जाती है, मतलब कि ये है कि कुछ मात्रा में बारिश होती है और ये मौसम अच्छा रहता है, कुल मिला के मौसम जो है वो अच्छा रहता है, ठीक है। सो द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी, यानी कि वहाँ पर जो एयर रहती है उसमें इनवायरेट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कॉफ़ी की। कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। अब जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं एंड कॉलोनियल जो बंगलोज है वो कहाँ पर हैं, स्टैंड टक्ड वो कहाँ पर हैं, अंडर ट्री कैनोपीज, जो कैनोपीज मतलब जो एकदम कवर्ड ट्रीज़ होती हैं ना, उनके नीचे होते हैं ये, सो उनके नीचे ये होते हैं, कहाँ पर, प्राइम कॉर्नर पर, प्राइम मतलब मेन कॉर्नर्स पर। द फाइसली इंडिपेंडेंट पीपल कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डेसेंट। अब ये जो है कहा जाता है, मतलब पावरफुली जो है इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग जो है ये कहा जाता है कि ये जो ग्रीक या फिर अरेबिक हो सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, पॉसिबली वर्ड लगा है तो हो सकते हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक स्टोरी कही जाती है इनके बारे में। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, के एक पार्ट जो है अलेक्जेंडर की आर्मी का, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, साउथ की तरफ जो है आ करके रहने लग गया, एंड सेटल देयर, आया एंड सेटल हो गया वहाँ पर। व्हेन रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल, जब लौटना जो है उनके लिए संभव नहीं था, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू देम टू रिटर्न, सो दे केम, अलेक्जेंडर्स आर्मी दे केम हियर एंड दे सेटल्ड हियर, ठीक है, इन साउथ कोस्ट, ठीक है। सो दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल, इन्होंने लोकल लोगों से शादी कर ली, एंड उनके कल्चर को अपरेंट इन मार्शल ट्रेडिशन, अच्छा, और उनके कल्चर में उन्होंने दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, लोकल से शादी कर ली, और उनका कल्चर अपरेंट मतलब कि ये चीज़ शो करता है, विजिबल है, अपरेंट मतलब विजिबल है, इन द मार्शल ट्रेडिशन, वो मार्शल ट्रेडिशन में उनका कल्चर जो है, अलेक्जेंडर का कल्चर जो है उनकी उस तरफ का
वो उसमें दिखाई देता है। मैरिज एंड ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स में ये सब दिखाई देता है। विच आर डिस्टिंक्ट, जो कि अलग हैं, फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू की जो मेन स्ट्रीम है, मुख्य धारा, मतलब हमारे यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो उनकी से अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, जो थ्योरी है अरब ऑरिजिन की वो जो है काफ़ी इसको सपोर्ट करती है, क्योंकि क्या सपोर्ट करता है, ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द, जब आप इनका लॉन्ग कोट देखते हो, मैंने आपको पहले भी इनकी पिक्चर दिखाई थी और यहाँ भी आप देख लीजिए लॉन्ग कोट, लॉन्ग ब्लैक कोट जो ये पहनते हैं, तो इससे ये चीज़ समझ में आती है। एंड विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और जो इनकी वेस्ट बेल्ट है वो आप देख सकते हैं, तो इससे ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ये लोग, इन लोगों को काफ़ी, मतलब ये उधर की जो अरब की तरफ के लोग हैं उनसे काफ़ी इनका ट्रेडिशन मिलता जुलता है, क्योंकि अरब के लोग भी ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। सो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, एंड दिस इज़ ऑल्सो यू कैन सी हियर कोडावूज। सो विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाई कोडावूज, जो कि कोडावूज के द्वारा पहनी जाते हैं। सो क्या क्या पहना जाता है, हैव अ लुक ऑन दैट। फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबा एक ब्लैक कोट, और जिसके कि वेस्ट पे जो है उन्होंने एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय कोडावूज, कोडावूज इस तरह के कपड़े पहनते हैं। आई हैव ऑलरेडी शोन द पिक्चर ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है, मैं बाद में फिर दिखा दूंगी। और उस कपड़े को क्या कहते हैं, कुफिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया, ये लगता है कुफिया की तरह, वॉर्न बाय अरब्स, जो कि अरब्स में पहनी जाती है और कुर्ड्स के बीच में पहनी जाती है, मतलब अरब्स एंड कुर्ड्स इसको पहनते हैं, इसलिए इनका ट्रेडिशन काफ़ी कुछ ऐसा लगता है जैसे कि इनका ओरिजिन जो है अरब से है। उनका काफ़ी चीज़ें, कपड़े वगैरह इनके मिलते हैं, ठीक है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, जो कावेरी रिवर है उसका पानी जो है वो कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों में वहाँ पर मिलता है, ठीक है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक महासीर एक लार्ज जो है, एक बड़ी सी जो है फिश है जो कि अबंडेंट इन दीज वाटर्स, जो कि इस पानी में पाई जाती है, ठीक है। किस पानी में, जो रिवर कावेरी है वो यहाँ पे देख सकते हो, और एक लार्ज फ्रेश वाटर की फ़िश है जिसका महासीर, जो एक बड़ी सी फ्रेश वाटर फिश है, वो अक्सर यहाँ पर पाई जाती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, और किंग फिशर्स उनको पकड़ने के लिए डाइव लगाते हैं, मतलब उनको पकड़ने के लिए जो है नीचे जाते हैं, डाइव करते हैं। जबकि स्क्वेरल्स और लंगूर्स, और जो स्क्वेरल और लंगूर्स हैं वो तो नहीं कर सकते ना, उसमें स्विम ही नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, ड्रॉप पार्शियल ईटन फ्रूट, वो आधा खाया हुआ फल जो है वो पानी में फेंक देते हैं, फॉर द मिसचीफ, शरारत के लिए, ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश, और वो स्प्लैश की आवाज़ आती है ना, ऊपर से फेंकते हैं, तो आप भी कभी फेंकते हैं पानी में पत्थर फेंकते हैं तो स्प्लैश होता है, तो वही स्प्लैश की आवाज़ जो है उसको उससे इंजॉय करने के लिए। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, और एक रिपल इफ़ेक्ट के लिए उस क्लियर वाटर में, उसके लिए क्या करते हैं, वो जो है वो उसको पानी को वहाँ पर वो उसमें पानी में जो है आधे फल फेंकते हैं, अपने खाए हुए आधे फल फेंकते हैं, ठीक है। लेकिन एलिफेंट क्या एंजॉय करते हैं, वहाँ पर नहाना एंजॉय करते हैं, स्क्रब करना, रगड़ना, इन द रिवर बाय देयर महावत जो उनको रगड़ते हैं, नहलाते हैं, वो उसको एंजॉय करते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स, अच्छा, जो द मोस्ट लेड बैक मतलब होता है बहुत आलसी लोग, आलसी इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर, उनकी लाइफ भी यहाँ आकर के बिल्कुल हाई एनर्जी एडवेंचर में चेंज हो जाती है। विद रिवर राफ्टिंग, क्योंकि वो वहाँ पर क्या देखते हैं, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी रैपलिंग की, और रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रैकर, तो ये उन सब के बहुत फेवरेट गेम हो जाते हैं वहाँ पर जाकर के, जो बहुत आलसी भी होते हैं वो भी। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, यहाँ पर बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज हैं जो आपको कंपनी देती हैं। यहाँ पर मकॉस, मलाबार, स्क्वायरल, लंगूर्स हैं, एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी, ये आपको आपके ऊपर दूर से नज़र रखते हैं, ठीक है।
ट्री की कैनोपी में, मतलब ऊपर से ये आप पे नज़र रखते हैं। एंड आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और मैं जो क्या करता हूँ, उन्होंने बोला है कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं इन जो ये जंगली एलिफेंट्स होते हैं, इनकी वजह से थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ। ठीक है। सो द क्लाइंब टू द ब्रह्मागिरी हिल्स ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू। और जो क्लाइंब है, जो जब आप चढ़ते हो कहाँ पर, जो यहाँ पर जब आप जाते हो तो यहाँ पर द क्लाइंब टू ब्रह्मगिरी हिल्स, जो जब आप चढ़ते हो ब्रह्मगिरी हिल्स पर, ब्रिंग यू इनटू अ पैनोरमिक व्यू, एक बहुत ज़बरदस्त बढ़िया एकदम व्यू ऑफ एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्ट मतलब होता है धुंध। ठीक है। तो जो लैंडस्केप है कुर्ग का पूरा, मतलब एक बहुत ही वंडरफुल सुपर्ब व्यू मिलता है आपको कुर्ग का, एकदम एंटायर मिस्टी लैंडस्केप का ऑफ कुर्ग का, एक बहुत ही पैनोरमिक, मतलब बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंज, बहुत ही ज़बरदस्त जो है व्यू मिलता है आपको। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, और जब आप वॉक करते हो रोप ब्रिज से होते हुए, लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड, तो फिर आपको क्या मिलता है, 64 एकड़ आइलैंड का, आइलैंड ऑफ निसार जो है वो कहाँ पर मिल जाता है, निसार धाम द्वीप ले जाती है, निसार धाम आइलैंड पर आप पहुंच जाते हो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, और रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, वहाँ पर एट नियर बाय बाइलकुप। ठीक है। तो वहाँ पर बिलकुप के पास में ही जो इंडियन ये मॉन्क्स हैं, ठीक है, वो मिलते हैं अगर आपको, तो ये आपके लिए एक बोनस होता है, इज़ अ बोनस। ठीक है। सो रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, तो बुद्धिस्ट मॉन्क जब आप चलते हो, आगे बढ़ते हो, तो वहाँ पर कहाँ पर, बिलकुप के पास में ही, नियर बाय बिलकुप के पास में ही आपको एक जो है क्या मिलता है, तिब्बतियन सेटलमेंट में क्या मिलते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क, जो इंडिया के लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट में, वहाँ पर अगर वो आपको मिल जाते हैं तो ये आपके लिए एक बोनस की बात है। क्यों बोनस की बात है, क्योंकि द मॉन्क इन रेड ऑकर और येलो रॉब्स, अक्सर पीले, लाल या फिर गेरुए रंग के कपड़ों में आपको वहाँ पर ये लोग मिल जाएंगे। आर ऑलमोस्ट द मैनी सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज़ होता है, दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, जिन्हें वेट किया जाता है डिस्कवर करने के लिए बाय विजिटर्स, मतलब विजिटर यहाँ आते हैं उनको ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए, मॉन्क से मिलने के लिए, साधुओं से, बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं उनसे मिलने के लिए कहाँ पर आते हैं, वो बिलकुप में आते हैं। तो अगर आपको अगर आप वहाँ घूमने आए हो और अगर आपको कोई मिल जाते हैं वहाँ पर बौद्ध मॉन्क्स, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी, बहुत बोनस वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ लोग जो है विजिटर्स आते हैं उनको ढूंढने के लिए, कैसे, रेड ऑकर या येलो कपड़ों में उनको ढूंढने के लिए कि कोई मॉन्क मिल जाए, इस तरीके से कोई साधु मिल जाए। आर एमंग्स द मैनी सरप्राइजेज, ये वहाँ पर एक सरप्राइजेज़ में, एक अनोखे रूप में आप ले लीजिए कि ये भी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ है, मिल जाती है अगर आपको मिल जाते हैं वो लोग। तो फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो कि हार्ट एंड साउल हैं किसके, इंडिया के, डेफिनेटली जो साधु महात्मा, ये सब जो है भारत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लोग उनकी रेस्पेक्ट करते हैं और लोग उनको मानते हैं, देश क्या विदेश के लोग उनको मानते हैं, लोग उनसे मिलने आते हैं। सो वो यहाँ पर आते हैं उनको ढूंढने के लिए, सोल ऑफ इंडिया, जो कि साउल हैं ऑफ इंडिया की, राइट हेयर इन कुर्ग, कहाँ पर, कुर्ग में। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी जो मैंने बताई यहाँ पर, और आप ये वर्ड मीनिंग्स भी देख सकते हैं। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से कल्चर जो है कुर्ग का, एक बार कल्चर एंड ट्रेडिशन की बात कर रहे थे, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ पिक्चर्स। ये देखिए यहाँ के ट्रेडिशंस हैं, ये देखिए मैंने बताया था यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई थी मैंने, कोडागू या इसको बोलेंगे कुर्ग। ठीक है। एंड ये देखिए रैपलिंग, और ये जो है मैंने आपको बताया था कि ये कौन है, कोडावूज है, और ये पहने क्या है, कुपिया है, जो काफ़ी कुछ किसकी तरह लगती है, कुफिया की तरह लगती है, जो अरब्स लोग एंड कुर्ड्स लोग पहनते हैं। ठीक है। और ये मंकीज़, ये आप पर नज़र रखते हैं, बर्ड्स, ये सब नज़र रखते हैं, और लोग यहाँ पर इस तरीके से लाइफ को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल जगह है कुर्ग।
और अब चैप्टर जो यू की ख़त्म हो गया है, काफ़ी अच्छा छोटा सा और काफ़ी अच्छा चैप्टर था। आपको कुर्ग के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज हुई होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 3 इसका जो है टी फ्रॉम आसाम, वो मैं आपको वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी आपको, तो उसको भी मैं इसके साथ में लिंक शेयर कर दूँगी जो अपलोड करूँगी। तो आप पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक एंड शेयर तो बनता है तो वो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।